Hello, everybody. Welcome to another episode 3 of Ink and Insight. I am Reet Kalwani. And I'm Dilpreet Kodami. And today we have the very first and special guest on our podcast channel, a very young, dynamic gynecologist at Jabalpur Hospital, Dr. Richa Dhiravani. And today, आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं दिलप्रीत, जिसके बारे में बहुत ही धीरे धीरे बात होती है और बातचीत तो छोड़िए, लेडीज गो थ्रू दिस अलोन. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट हाइप टॉपिक ऑन Instagram, menopause. Absolutely. We are going to break the myths. We will come out of this taboo and understand why this is happening to us, the symptoms, what are the symptoms, so many things. So we have with us, as Reet told you, the most celebrated, one of the most celebrated gynecologist who has, given her precious time to us, she's taken out the time. Ma'am, would you like to say something? Yes, so thank you, Reet and Dilpreet, and for inviting me here on Ink and Insight, and for initiating a conversation much needed in the society about menopause. बहुत ज़रूरी है इसके बारे में जानना. So a group of perimenopausal women discussing is the best set that we can have. Both of us are going to be 40 this year. Yes. She's past 40. So I'm sure you'll relate and we'll talk and we're going to give out messages आपके चैनल के माध्यम से ताकि at least थोड़ा little information here and there can help people. So thank you so much, ma'am, for coming to us, coming to Ink and Insight. Actually, बहुत ज़्यादा taboo है इस term को लेके और बहुत confusion है. हमें यही नहीं पता कि what is menopause, perimenopause, please. So I would want you to throw some light on the three terms: perimenopause, premenopause, and menopause. Thank you, Ink and Insight, firstly for having me here to talk about something which every woman, in fact, every man also should know. Absolutely. Menopause is a very broad term. Let me take you through whatever little I can help and others too who are listening to this channel. Dilpreet, as you asked me, what is pre-peri and menopause? Yes. Pre-menopause is a time, any time before menopausal symptoms hit. मतलब any time in your reproductive journey when you're chumming well, periods ठीक आ रहे हैं, आपके बच्चे होते हैं, जब तक आपके मेनोपॉजल सिम्टम्स स्टार्ट नहीं होते तब तक उस एरिया को उस जोन को हम प्री मेनोपॉज बोलते हैं. पेरी मेनोपॉज का मतलब कि आपके सिम्टम्स आना शुरू हो रहे हैं. ब्रॉडली वेस्टर्न कंट्रीज में मेनोपॉजल एज ग्रुप वुमेन जो ब्रैकेट रखा है वो यूजुअली 50-52 ईयर्स का होता है. इंडिया में ये जो है अमूमन तौर पे 46 to 48 ईयर्स माना गया है कि इंडियन वुमेन का मेनोपॉजल एज ब्रैकेट ये है. तो अगर किसी महिला को 40 के आसपास मेनोपॉजल सिम्टम्स आने शुरू होते हैं तो ये ट्रांजिशन जो हो रहा होता है टुवर्ड्स कंप्लीट सेजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जबकि मतलब कि 1 साल तक आपकी माहवारी ना आना, एक भी पीरियड साइकिल नहीं आना, ये 1 साल का जो समय रहता है उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं. और इसके आजू बाजू का पीरियड इट कैन वेरी फ्रॉम 2 to 6 years, 8 years in some women when the symptoms can start. That is known as a perimenopause. Okay. And menopause is when actually it has happened to you. मतलब आपको 1 साल लगातार 12 महीने में 12 साइकिल नहीं आई है. Okay. मतलब आपके 12 साइकिल्स आपके पीरियड मिस हुए हैं. For 1 year you have not had even one episode. That means you have attained menopause. And one more question which is relevant, जो कि मेरी फ्रेंड की मदर के साथ हुआ था, उनको मेनोपॉज हो गया. आफ्टर 10 years उनको स्पॉटिंग होना स्टार्ट हुई. सो इज इट एट दिस टाइम जो उनको ऐसा हुआ उनको जाना चाहिए था क्या गायनेक के पास? Yes, very well put question, because we learn through our experiences. Absolutely. Now you'll remember this forever because your friend's mother had to go through that. Yes. So this is known as a post-menopausal bleeding. पोस्ट-मेनोपॉजल ब्लीड के बहुत सारे कारण होते हैं. उसमें से एक कारण यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर या सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है. एंड आई एम श्योर she must have undergone the battery of tests which the gynecologist must and have she advised. was diagnosed with cancer. Yes. So any time after attaining menopause, even if you have the slightest spotting, Yes. you shouldn't be ignoring it. भले वो नॉर्मल कह के आप वापस आ जाएं, कि वो एग्जामिनेशन हो जाए, चेकअप्स हो जाएं, पर आपको गायनेक के पास जाना ही है. And you should get the tests done as advised. Okay.
सो अगेन जो हमें ये टर्म्स हैं जो हम नहीं समझ पाते एज अ layman, ma'am, what are these three terms? I keep getting confused with progesterone, testosterone, and cortisol levels. What are these terms, and how are they related to our menopause or perimenopause? Are they in any case related? यस, सो ये सारे हॉर्मोन्स के नाम हैं। हमारा जो फीमेल हार्मोन है, इट्स एन इंटरप्ले ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। Okay. टेस्टोस्टेरॉन इज प्राइमरीली अ मेल हार्मोन। जो ऐसा नहीं है कि महिला के शरीर से टेस्टोस्टेरॉन नहीं निकलता, वो कम स्थितियों में, कभी कम मात्रा में, इन कंपैरिजन टू अ मैन वो निकलता है। कुछ रेयर केसेस में ज्यादा होता है, बट लिटिल बिट ऑफ टेस्टोस्टेरॉन इज आल्सो देयर इन अस। Okay. Cortisol, as you know, very famous, is the stress hormone. Stress. Yes. So these are all hormonal terms. Of course, menopause is an interplay of hormones. Yes. Estrogen का drop होना, क्योंकि आपकी ओवेरियन एजिंग हो रही है, ओवेरियन फंक्शन कम हो रहा है, इसलिए माहवारी नहीं आना, अंडे बनने की प्रक्रिया नहीं होना, और ये सारी चीजें रिलेटेड है आपके मेनोपॉज से। ये दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। सो मोर और लेस आपने जो पूछा, इट इज ऑल इंटररिलेटेड बिकॉज इट्स रिलेटेड टू आवर मेटाबॉलिज्म। सो इफ अगर हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम कमजोर हो रहा है या उसका शट डाउन होने वाला है कुछ टाइम में, so will it have an effect on a libido? Like, will we face a loss in our libido, or will there be ऐसा होगा कि intimacy में जो couple की intimacy है उसमें कुछ effect आएगा? Yeah, it's a very good question. I want to answer it in detail. देखिए, let me take you, जैसे हम गार्डन जाते हैं, वहाँ एक सीसॉ रहता है। सो सीसॉ में जब एक व्यक्ति ऊपर जाता है, एक पिवट रहता है, और एक व्यक्ति नीचे आता है, तो वो बैलेंस बनता है। दिस इज व्हाट ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड ऑल दीज हार्मोन्स डू। अब अचानक मेनोपॉज एज आने वाली है, मेनोपॉजल हो रही है वुमेन, ओवेरियन फंक्शन डिमिनिश हो रहा है, अंडाशय काम करना कम कर रहा है, और इसमें हार्मोन्स जो है उसका जो ये लेवल होना चाहिए वो गड़बड़ हो रहा है। तो सडनली ईस्ट्रोजन डिक्लाइन होता है। डिक्लाइनिंग एस्ट्रोजन के कारण उसका इम्पैक्ट बहुत सारी जगहों में होता है। मेनोपॉज एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है, बेसिकली इट्स अ न्यूरो एंडोक्राइन। ना केवल ये ओवरी से, पर अपने ब्रेन से भी ये हार्मोन का रेगुलेशन होता है। दैट्स वाई जब एस्ट्रोजन कम होता है तो वजाइनल म्यूकोजा, मतलब योनि द्वार में जो म्यूकोजा रहती है उसकी थिनिंग हो जाती है। ईस्ट्रोजन कम होने के कारण वहाँ का ब्लड सप्लाई भी कम होता है। ईस्ट्रोजन कम होने के कारण वजाइनल म्यूकोजा थिनिंग होने के कारण वजाइनल ड्राइनेस होती है। दैट्स व्हाई व्हेनेवर कपल्स ट्राई टू हैव इंटरकॉर्स, the female goes through a little bit of dyspareunia. Dyspareunia मतलब painful intercourse, क्योंकि you need lubrication during intercourse. Now that lubrication is not happening, नहीं हो पा रहा है क्योंकि naturally, क्योंकि आपका sexual desire, loss of libido हो रहा है, क्योंकि आपको वो traumatic experience लगता है, आपको तकलीफ होती है, तो you are not mentally there. Now again, lubrication, it's said that sex is more from the brain than from the genitals. Yes. So because आपकी brain is not in place, why is the brain not in place? क्योंकि आप थके रहते हो। आप थके क्यों रहते हो, fatigued क्यों रहते हो? क्योंकि रात में अचानक hot flushes हुए, night sweats हुए, आपको रात में नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? Again, because estrogen also is related to having an impact on the brain and its parts. जैसे हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस जो है वो टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर होता है। ईस्ट्रोजन कम हुआ, हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी गड़बड़ हुई, तो फीमेल को सडनली आपको लगेगा अब भी गर्मी लग रही है। और कई बार आपने अपनी माताओं को ही देखा होगा, मम्मियों को देखा होगा कि सडनली she'll tell कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, सारे पंखे एसी ऑन हुए, एंड आफ्टर सम टाइम जब रेगुलेशन ठीक ठाक बैलेंस होता है, and then she'll start feeling better as well as even she can feel the extreme end of being feeling too cold at times. Yes. Secondly, there is a thing called brainstem, जो कि ब्रेनस्टेम जो रहता है ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो स्लीप को रेगुलेट करता है। तो अगर आपका ईस्ट्रोजन कम हुआ, ब्रेनस्टेम अफेक्ट हुआ, हाइपोथैलेमस अफेक्ट हुआ, फ्लशेस आ रहे, नींद नहीं आ रही, आप फटीग्ड हो, then your sexual desire in turn is decreased. Now you understand the loop. Second, Everything is related. yes, and loss of libido, करने की इच्छा नहीं होना, और जब you're trying to do it, it's not very pleasure giving. Yeah. क्योंकि आपकी जो फ्रिक्शन के कारण वजाइनल म्यूकोसा रब होती है और वो ड्राई है, so sometimes you might even bleed, or it might be painful, or it might
cause you little irritation and frequent UTIs. UTI is urinary tract infection. Now you understand the whole drama around menopause. Yeah. So estrogen is a big thing which is helpful for a woman, जो उसके लिए बहुत अच्छा है. तो जैसे कभी कभार मैं सुनती हूँ हमारे तो 40 या 42 या 45 में ही पीरियड्स बंद हो गए, अच्छा हो गया हम बंद हो गए. No, you should be thankful that you're chumming in a way, because estrogen is what keeping your heart healthy, your bones healthy, your brains healthy, your vagina healthy. Okay, so like the next question obviously would be कि अगर ये lubrication कम हो रहा है estrogen के कारण, तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं, any therapies, any interventions, because Yes. now we are in like we are technology savvy और इतने सारे medicines आ रहे हैं, तो क्या ऐसी कुछ हैं techniques जो या कुछ what can I say, medications that could help with this lubrication thing? Yes, the first thing that you do is आप अपने गायना के पास ये प्रॉब्लम्स के साथ जाएं और ये कहें कि मुझे ये तकलीफ हो रही है. Sexual intercourse is a very important part of a couple's life. Absolutely. The first thing is admission. हाँ मुझे ये तकलीफ हो रही है, Correct. rather than given कि it is okay, we are past 40s, we are past 50s and we need not have sex. Yeah. I often quote एक example. आप कुछ घरों में, कुछ पहले के ज़माने में जो ग्रैंड पेरेंट्स जैसे ही बनते थे उनके बेड अलग अलग हो जाते थे, या they used to sleep in different rooms or probably even single beds here and there, Yeah. because it was given okay, now you're not supposed to have sex, Oh. which is kind of wrong And unhealthy. unhealthy in a way, yes, क्योंकि वो Because ultimately it's going to impact the woman's health, no? yes Yeah. and also your spouse relationship. Absolutely. आपके हस्बैंड का कोई दोष नहीं है. It is your physiology you are undergoing, but at the same time menopause समझने के लिए husbands को भी उतना ही compassion दिखाना पड़ेगा, उतना ही supportive होना पड़ेगा. Absolutely. क्योंकि आपके शरीर में वो चीज़ें जो 20 साल के समय थी, 20 साल की उम्र में थी, वो अब नहीं है. और 40 के पड़ाव पे कुछ चीज़ें बदलाव होती, 50 पे कुछ और होती हैं. तो yes, there are treatment available. आप vaginal lubrication आपको advice किया जाएगा. There is this thing called hormone replacement therapy. क्योंकि हार्मोन कम हो गया है, तो देन आपको देख के लोकल लगाने के लिए हार्मोन्स या स्प्रे फॉर्म्स या पैचेस या ओरल, डिपेंडिंग ऑन योर अदर फैक्टर्स, गायना के एडवाइस करेंगे. थर्डली देयर इज अ न्यू थिंग कॉल्ड वजाइनल लेजर. आप लोगों ने सुना होगा कि लेजर यूज करके आप हेयर ग्रोथ फेशियल लेजर्स पे करते हैं. Yes. वैसे ही एक वजाइनल प्रोब के दौरान, वजाइनल लेजर के दौरान प्रक्रिया से हम वजाइनल रिजुविनेशन करते हैं, स्पेशली ऐसी महिलाओं का जिसमें कि एट्रोफी मतलब हार्मोन डिप्लीशन के कारण उसकी ड्राइनेस हो रही, थिनिंग हो रही है. तो उस महिला को जिसने वजाइनल लेजर सिटिंग्स हुई है उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स इश्यूज कम होते हैं. जेनाइटो यूरिनरी सिंड्रोम जिसमें बार बार यूटीआई होना, वजाइनल इचिंग होना, वो कम होती है. एंड इवेंचुअली you can get PRP shots in the vagina. आजकल aesthetic gynecology, cosmetic gynecology बहुत आगे बढ़ गई है. And this is something that you should know कि जबलपुर में होता है. Yeah, I'm so And- glad. Yeah. Yeah. और आप इस बारे में अप्रोच करें, बात करें, बी वोकल अबाउट इट, Absolutely. rather than hiding and considering कि इट्स ओके दैट आई एम हैविंग इश्यूज इन सेक्स. हर महिला के साथ होता है. Yeah. नहीं, आपको अगर प्रॉब्लम है उसकी थेरेपीज अवेलेबल है. Oh, nice. You might as well see someone. Yeah, that's so nice and so enlightening and so insightful, because I am myself going through lot many issues and I wasn't knowing there are therapies available. I'm so glad कि जबलपुर में कोई तो है जो हमें इतने खुल के इतनी अच्छी चीजें बता पा रहा है. So thank you so much, ma'am. I think I would wrap with this. So मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर. जिस टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं इस पे डिस्कशंस तो छोड़िए, मतलब सब कुछ चुप करा दिया जाता है बिकॉज इट इज ऑल अबाउट periods. So it's not that topic that can be discussed in households. So what are the common symptoms जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि we are going through this phase? See, I'm so glad this question is asked. Menopause, first it comes with the symptom of your period. आपकी माहवारी या तो गड़बड़ाने लगेगी, या थोड़ी ज़्यादा आएगी, या कम होगी, या irregular होगी, spotting होगी, या नहीं आएगी. इनमें से कुछ भी हो रहा हो, any deviation other than normal is a symptom, kind of a symptom of perimenopausal transition. Secondly, you can have other neurological या neuroendocrine irritations or problems like suddenly गर्मी लगना, बहुत पसीना आना, फिर ठंड लगना, या बोनी एक्स होना,
या फिर आपको वेट गेन होना, मूड स्विंग्स होना, Yes, anything and absolutely that affects your entire disruption of your daily life with maybe problems in sexual intercourse, yeah, maybe issues with metabolism per se, digestion, etc etc etc, Exertion. everything that Yes, comes. yes, that's वही right. 2 रोटी जो आप 20 साल की उम्र में खाते थे, उससे कभी वेट गेन नहीं, वही 2 रोटी अभी आप खाने लगे हो, ऐसा लग रहा है कि हर Actually, वीक या हर महीने आपका वेट गेन हो रहा है. अच्छे रूटीन्स के बाद भी वी आर नॉट अप टू दैट हेल्थ मार्क, और चिड़चिड़ापन, एंजाइटी लेवल्स, अचानक से रोना आ जाना, मूड स्विंग्स, क्योंकि Correct. जब तक हम नहीं समझ पाएंगे, उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे फैमिली में, तो कोई समझ ही नहीं पाएगा फिर. Yes. सो मैम, व्हाट आर द नेचुरल वेज टू मैनेज दीज सिम्टम्स? कोई पर्टिकुलर कॉमन टेस्ट है जो हमें 40s में या लेट 30s में करा लेने चाहिए? So let's answer the first part of your question. The natural ways is of course working on your lifestyle, regulating sleep. ये सारी चीज़ें जो मैं अब बोल रही हूँ वो कहने को तो बहुत आसान है, सबको सब पता है, बट करना, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है. एक्चुअली A good sleep is very important because sleep में बॉडी रिपेरेशन, बॉडी रिपेयर वर्क होता है. जो व्यक्ति अमूमन तौर पर कम सोता है उसको इतना वक्त नहीं मिलता है उसकी बॉडी को टू टेक अ हॉल्ट प्रोसेस एंड देन नेक्स्ट डे के लिए रेडी होना. रिजुवेनेशन बोलो, हार्मोनल इम्बैलेंस या बैलेंस हो रहे होते हैं वो नींद में होते हैं, तो आपको उतने घंटे की स्लीप तो ज़रूरी है फर्स्ट. Second, what we put in the mouth reflects in your overall life. So diet, what things that you can do specially pertaining to menopause is incorporate soya in your diet. ओके. सोयाबीन जो रहता है उसमें आइसोफ्लेवॉन्स नाम का एक तत्व रहता है. उस आइसोफ्लेवॉन्स जो रहते हैं वो फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं, मतलब जो हमारा नॉर्मल ईस्ट्रोजन हार्मोन है जो कि मेनोपॉज में नेचुरल तरीके से हमारे शरीर से कम हो गया है, ये उसका एक वर्जन आप रूप समझ लो, तो ये आपको एक्स्ट्रा बाहर से सप्लाई मिल रहा है जो कि सोया में. सेकेंड, आपको फ्लैक्स सीड्स या अलसी, उसको भी आपकी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर पेरीमेनोपॉजल. अलसी एनीवेज इज अ हेल्दी थिंग, बट पेरीमेनोपॉज में करेंगे ये सारे Especially for that changes. phase, Yes, for yes. that. Then you do that. Thirdly, you do high protein diet. Protein, you know that protein vegetarian sources of Yes. dal, rajma, pulses, whatever you can eat. And जैसे आपने सुना होगा कैमोमिल टी वगैरह लोग पीते हैं, हाँ. वो उससे स्लीप रेगुलेट होता है. अश्वगंधा या फिर शतावरी वगैरह Sleep से plays the major role here. It does. And अश्वगंधा शतावरी जो आयुर्वेदिक पार्ट है उसका, जो आप इनकॉर्पोरेट करेंगे Natural honey ways, natural yes, ways, yes. so more or less high protein diet and less alcohol, less smoking if you're doing that, and Sedentary less, lifestyle. yes, and fried food, something that affects your metabolism. Thirdly, I've covered sleep and diet. Third, I would want to focus on exercise. Just one form of exercise never helps. मेनोपॉज के बाद स्पेशली आपको सार्कोपीनिया होता है और मसल लॉस ज़्यादा होता है, Okay. तो यू हैव टू डू अ बैलेंस ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल बिल्डिंग एज वेल एज कार्डियो. Alone running on the treadmill 60 minutes will never help. Yes, ma'am. I would like to point out, because strength training के लिए एक बहुत myth है, लोगों को लगता है muscle building हो जाएगी, but it is very important in our 40s. It is. Because muscle loss हो जाता है फिर हमारा. Absolutely. हमारे योगा को फेमस करने वाले बाहर के लोग हैं. योगा became a more like a yoga gained its celebrity status जब ये बाहर के लोग करने लगे. They used to pay very well for yoga classes. Yes, तब yes, suddenly इंडिया में absolutely. boom हो गया. Then we started to imitate it. Yes, तो जबकि हमारे पूर्वज कितने साल से Ancient करते आ practice, रहे हैं. correct. It's a perfect balance of muscle training, weight training in मतलब योगा Body में जो- weight exercise. Exactly. Yes, So actually. you should do yoga अंडर गाइडेंस. भाई आप Yes. कितने ओबीज हैं, आपके लिए क्या फिट है, क्या आपका बोन उतने वजन के लिए क्या है. With particular asanas that would help for this. एंड इवन जो ओबीज है वो सडनली अगर ट्रेडमिल पे चलेंगे, आप अपनी बोन पे एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं. तो ये सब आपको गाइडेड एक्सरसाइजेस ही करनी है, बट मसल बिल्डिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, a balance of cardio is important in menopause. Okay. This is your first part of the question. Yes. The natural ways. Now you asked me what are the tests. Yes. What are the common tests? So if I were to enumerate, आपके ब्लड वर्कअप में अराउंड मेनोपॉज आपका थायराइड और शुगर्स देखना जरूरी है. Okay. There's something called as DEXA scan जो कि आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है. Okay. क्योंकि मेनोपॉजल वुमेन में ऑस्टियोपोरोसिस होता है, आपकी बोन आप समझिए नाजुक हो रही है, ब्रिटल हो रही है.
Okay. जैसे हम बैंक में आप पैसा जमा करते हैं, तब आप जो जितना जमा करते हैं आप उतना निकालने की क्षमता रखते हैं। बोन हेल्थ इसी तरीके की चीज़ है, शुरू से उसमें जमा हो रही है। आपका रिजर्व ही अगर अच्छा ना बना हो, राइट फ्रॉम रिप्रोडक्टिव एज, Basi, yes, कि आपके yes. बच्चे हो गए, आपने बच्चों की डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम फेज में कैल्शियम इंटेक नहीं किया, आपके दूसरा बच्चा हुआ, फिर आपने इग्नोर किया, फिर आपने नहीं वो किया, इग्नोर होता आया and then we हाँ। started losing it. हाँ, तो आपका रिजर्व कम होता जा रहा है। और दूसरा एज रिलेटेड चेंजेस आ रहे हैं। पहले बोन फॉर्मेशन ऑस्टियोब्लास्ट काम करता है, मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी जो बनाने की, जोड़ने की नई बोन की प्रक्रिया, वो कम होती जाती है, तो ऑब्वियसली कैल्शियम डिप्लीशन होता है। सो योर कैल्शियम, विटामिन डी, डेक्सा स्कैन रिलेटेड टू योर बोन मस्ट, थायराइड एंड शुगर्स मस्ट। Yes, yes. फिर मेटाबॉलिक प्रोफाइल में आता है आपका लिवर फंक्शन टेस्ट, लिवर कैसा काम कर रहा है, किडनी फंक्शन टेस्ट, एंड फोर्थली आई से थिंग टू सी फॉर योर सर्वाइकल कैंसर्स, a pap smear or a liquid based cytology and HPV must as क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो हर महिला को अपनी साल में एक बार, this should be a birthday gift to yourself. There are few cancers which are preventable. You might as well detect them early rather than coming with a symptom. ये इंडियन औरतों की बहुत खासियत है। Ma'am, lack of awareness होता है because ladies usually, no matter how educated they are, you know, they won't prioritize themselves. Yes, so very well. And Indian woman का तो थ्रेशोल्ड बहुत ही ज़्यादा है कि जब तक महिला बिल्कुल आखिरी उस पड़ाव में नहीं होगी कि वो बिस्तर पे ना आ जाए, तब तक अस्पताल मैम का रुख क्योंकि नहीं उनको लेती। उस चीज के लिए ग्लोरीफाई कर दिया जाता है ना कि आप सबका ध्यान रखते हो, Correct. वाओ सुपर मॉम। तो आप चूंकि सेंटर ऑफ यूनिवर्स हो, घर में एक महिला जब ना हो या बीमार पड़ती है तो हर चीज अफेक्ट होती है ना। 100%. तो आपको उतना ड्यू देना चाहिए। मेनोपॉज इज योर क्यू in life to prioritize yourself. Yes, actually very well said, ma'am. Yeah, so that Yes. cue God is giving you कि अब ये changes आ रहे हैं, you might as well take care of yourself. Yes. नहीं तो आगे तकलीफ बहुत जल्दी होने वाली। So टेस्ट में you also have should do pap smear के साथ साथ एक basic sonography, चाहे कोई तकलीफ हो या ना हो। मुझे आज, जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में मेरी मदर के लिए भी, मेरे लिए भी, और मेरे जो साथ वालों के लिए हैं, ऑन देयर बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज आई रिमाइंड देम कि आई एम गोइंग टू स्पॉन्सर फॉर योर हेल्थ चेकअप, like go get your all That's a tests done. great idea, I must say. Yeah, Yes. so this should be the birthday gift to yourself. नहीं तो आप अस्पताल कभी नहीं जाओगे। हाँ. आप भले बर्थडे वाले दिन ना जाओ, बट योर बर्थडे मंथ शुड रिमाइंड यू कि मुझे चाहे कोई तकलीफ है नहीं है, एक बेसिक सोनोग्राफी करवानी है, चेकअप कराना एक है अपना चेकअप वेलबींग कराना के लिए। है। यस, और साल में एक बार तो हम 2-5 हज़ार अपने ऊपर खर्च कर ही सकते हैं। सेकंड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रेस्ट चेंजेस जो कि मैमोग्राम से आप पकड़ सकते हैं, और Okay. सोनोग्राफी और मैमोग्राफी। मैमोग्राफी जो रहती है वो 40 के ऊपर एडवाइजेबल है, और अगर उसके पहले कोई लंप वगैरह फील करते हो तो सोनोग्राफी। एंड ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन अपने आप में एक अलग पॉडकास्ट का टॉपिक है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर भी बढ़ रहा है। So even that is a part of this menopausal health checkup. These are the basic tests जो हर महिला को जो menopausal हो रही है, पेरीमेनोपॉज में है, ये everybody should take a note of it कि Yes. ये list of tests and we'll mention them. Yes. That you know everybody should get it done, and as you said, it can be birthday gift. Yes, and क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप समय के पहले या समय रहते पकड़ लें तो वो ट्रीटेबल है, और प्योर फुल फ्लेजेड कैंसर में नहीं भी बदलेगी। It's a fair investment. Yes. You should do it. Absolutely. Yes, ma'am. Like, do we need to visit a gynec after we are done with the periods? Because एक ऐसा रहता है ना that we are done with the kids. अब gynec के पास जाना नहीं पड़ेगा. So what should be the regularity of visiting a gynec for your? So let me answer this. कोई भी मशीन अपने घर में रहती है, उसका एनुअल मेंटेनेंस हम करते हैं ना। Correct. आप एसी चेकअप वाले को समर सीजन के पहले बुला के एसीज दिखवाते हैं, Repair करा लेते हैं। आप 100%. अपना जो आप जिससे पानी पीते हैं, जो आपका प्यूरिफायर है, वो आप अप टू डेट करते रहते हैं ना, तो हेल्थ क्यों नहीं? इवन इफ यू हैव नथिंग, यू शुड ऑलवेज सी योर डॉक्टर वंस अ ईयर। मैं तो कहूँगी यार 6 महीने में, दैट्स नॉट पॉसिबल इंडियन सिनेरियो। एटलीस्ट वंस अ ईयर, चाहे कोई तकलीफ हो ना हो, आप जाएं कि मैं इस एज ब्रैकेट में आती हूँ, मुझे ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट डू अ थरो हेल्थ चेकअप फॉर मी। We think self awareness would only help because हमारी सोसाइटी में एक ये बहुत बड़ा मतलब ये बहुत ही अजीब सी प्रैक्टिस है कि जब तक कुछ होता नहीं है we don't visit doctors. That is true. And one more thing here, prevention is better than cure. 100%. किसी It is. नेक व्यक्ति ने ही कहा है
मैं हमेशा अपने हर टॉक में एज अ डॉक्टर आई बिलीव इन इन्वेस्टिंग इन प्रिवेंटिव हेल्थ स्ट्रैटेजीज. आई वॉन्ट टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन एक डॉक्टर होने के नाते कि आप पैसा प्रिवेंशन में डालिए, उन टेस्ट पे खर्च कीजिए जिससे बिल्कुल आपको सच। कुछ पहले पता चल सके, Actually. रादर देन आप उस स्टेज पे आए जिसमें हम आपको डायग्नोज करके स्ट्रेट अवे या तो गाड़ी हाथ से निकल चुकी है, We put समय you to निकल hospital चुका है, bed, yes. यस, और फिर आपके पास लगे काश मैंने ये 2 साल पहले करा लिया होता. तो इसलिए प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज हेल्थ में चेंजिंग सिनेरियो होगा. अगर आई ऑल्सो फील इफ इंडिया हैज टू प्रोग्रेस फ्रॉम अ डेवलपिंग नेशन टू डेवलप्ड नेशन, Yes. एंड इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ सेक्टर पर से इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ गवर्नमेंट के पैसे डालने से नहीं होता है, हमारी थॉट प्रोसेस बदलना बहुत जरूरी एक है. माइंडसेट चेंज होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. हम कैसे अपने बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए कैलेंडर देख के लेके जाते हैं बहुत ना, ध्यान से कि ये हमारे बच्चे का अभी वैक्सीनेशन शेड्यूल्ड है, हम लेके जाते हैं. तो हम क्यों अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते? हर ये साल सबसे बड़ा पॉइंट है, एक हाईलाइट होना चाहिए जो एवरी विमेन शुड take care of themselves, especially in this age group, late 30s and early 40s. एब्सोल्युटली. Ma'am, one more question I have is like, does menopause have an effect on our mental health? Because data has revealed that a lot of divorce cases and suicide cases happen in this age group. What do you think? It does. आजकल mental health per se is a very broad term. Let me sum up for you. There's a very good podcast on YouTube. You all should listen. Okay. How menopause affects the brain. This woman Lisa something. Yes. Lisa Mosconi. She's been telling about it. It's a brilliant podcast. कि वो scientific basis बताता है. Let me take you how menopause affects mental health. मेनोपॉज होता है ईस्ट्रोजन की कमी के कारण. ईस्ट्रोजन हमारी जिंदगी का एनर्जी है, समझो कि वही महिला 20-25 में जो एनर्जी महसूस करती है वो 40 में नहीं करती है, 50 में और कम होती है, 60 में बिल्कुल कम कम होती होती जाती है. क्योंकि डिप्लीशन हो रहा है. ईस्ट्रोजन के कारण जो एनर्जी डाउन होता है आपने, और वो इनडायरेक्टली ब्रेन के फंक्शन को भी अफेक्ट करती है. जैसे Okay. सारे और जो सारे पार्ट्स रहते हैं ब्रेन के, आप हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, ब्रेन स्टेम, ये सारे पार्ट्स हैं जिसमें ईस्ट्रोजन इनडायरेक्टली काम करता है. आपके शरीर से ये कम हो रहा है, आपका ब्रेन अफेक्ट हो रहा है. ये केवल ओवरीज में, ये बिल्कुल एक समझने की बात है कि मेनोपॉज मतलब माहवारी का बंद होना, केवल माहवारी का बंद होना नहीं है. यही पता है मैम, अभी हाँ. तक तो यही पता है. सिर्फ माहवारी रुकना ही मेनोपॉज नहीं है. मेनोपॉज में आपका ब्रेन, आपका हार्ट, आपकी बोन्स और आपका मेटाबॉलिज्म, थायराइड, शुगर, सब कुछ अफेक्ट होता है. आपने सुना होगा हार्ट अटैक्स मेल्स में ज्यादा होते हैं, फीमेल्स में कम होता है. करेक्ट. Yes. बहुत सारी चीजें, बिकॉज ईस्ट्रोजन इज कार्डियो प्रोटेक्टिव. वो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को ऊपर रखता है, लोअर बैड को कम रखता है ईस्ट्रोजन के कारण. Okay, it manages that. Yeah. Yes. So that's why you have to be more aware of your heart health when you are entering menopause. Okay. Now coming back to mental health, you mentioned suicide, divorces. Yes. Everything is related to how you think. एक हमारे टेक्स्ट बुक में एक कहावत है, एम्प्टीनेस सिंड्रोम औरत फील करती है. Yes. क्योंकि जब आप यंग रहते हो आपका पूरा ध्यान बच्चे पैदा करना, उनको स्कूल भेजना, उनको बड़ा करना, उनको Then कॉलेज तक kids जाना. leave you. Yes. It's an emptiness. And syndrome. suddenly the kids are gone. Yeah. And now your body is depleting of estrogen, getting depleted of estrogen. और आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपका सेक्सुअल हेल्थ भी अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि आप पार्टनर के साथ भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप फटीग्ड हो. फटीग क्यों? सो नहीं रहे हो. सो क्यों नहीं रहे हो? हॉट फ्लैशेस हैं. क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हार्मोन गड़बड़ी. सारे symptoms, they are in a loop, interconnected. Yes. एंड नाउ आपका मेंटल हेल्थ इसलिए क्योंकि आप सो नहीं पाते हो, बहुत सारे इश्यूज है हर जगह पे, आप उस एनर्जी में काम नहीं कर पा रहे हो, तो आपको अपने आप से कॉन्फिडेंस भी लो होता है. It does affect. Yeah, No I mean- matter how confident you are, Yeah. but these matlab mental health will deplete. And also it can even lead to Alzheimer's later on, a lot of other things. And suicide, depression is all interrelated, your environment. That's why in anything in a woman's life, a male partner, family is very important. आजकल मेरी एक और थ्योरी जो अक्सर मैं कहती हूँ कि क्योंकि हम लेट प्रेगनेंसीज करते हैं, तो बाय द टाइम आपका बच्चा टीनेज में है, आप मेनोपॉज फाइट कर रहे हैं. Yeah.
क्योंकि आपकी जब दादी नानी हमारी थी, उनकी शादी कैसे 16-18 में हो जाती Yes, exactly. जब तक उनका मेनोपॉज होता था, तब तक they were on the verge of becoming grandparents. Yes, correct. So Correct. now when we enter menopause, our children are entering puberty. तो आप अपने मेंटल स्ट्रेस से जूझ रहे हो, बच्चे खुद को अपने संभालें कि उनको संभालें. करेक्ट. सो दिस ऑल बैलेंस इज ब्लोन आउट. Ma'am, but couples delay these days. Delay Yeah. a lot. They want to live their own lives. They want to have children later, Yeah. but they don't understand the science behind it. Yes. So yes, it does affect mental health. Things that you can do. Take therapy. It's very underrated. किसी से बात करना ज़रूरी है. पहले के ज़माने में साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट बैठे नहीं होते थे. आप और मैं जैसे बात करें, मन का निकाला उबार, बड़बड़ Just कर venting दिया. out. Yes. A good friend, a good partner is very important. A good spouse is very important. Husband जो आपकी बात को समझे कि Need to talk about this. मुझे ऐसा feel हो रहा है. Yes. And एक ऐसा बच्चा जो आपके इमोशंस को समझे. 12, 13, 14 साल का तो बच्चा आपका बड़ा हो ही जाता है जब आप मेनोपॉजल हो रहे होते हैं. उससे भी ये समझाना जरूरी है कि महिला के शरीर में ये चेंजेस आ रहे हैं. That acceptance in the family is Yes, very important. we all together need to deal with it. Yes, and secondly, good hormones are released when you diet and exercise well. So take care of yourself. Correct. And the me time is very overrated. Instagram पे चाय के कप लेके न्यूज़पेपर और फोटो खींच के आप इंस्टाग्राम को मी टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हो. मी टाइम अगर होगा ट्रूली तो आई डोंट थिंक यू नीड टू ब्लॉग इट, or maybe you just need to feel it. That's what the principle that I have. Without phones. Exactly. Looking into ourselves. And Anything that gives you peace of mind. Probably today's me time is chatting that is happening between us. yeah. At least I'm able to do what I like doing. Just talking and telling something that I know. और आपके पॉडकास्ट से अगर 2 महिलाओं में भी ये जागरूकता आई कि नहीं मुझे 40 की हो रही हूँ, मुझे अपनी जांच कराना चाहिए, या अगर कोई मेल पार्टनर सुन रहा है और उसमें ये बात आई कि नहीं मेरी वाइफ को ये सिम्टम्स है, वाकई में तुझे क्या हो गया आजकल, यू आर गोइंग थ्रू दिस फेज, दैट विल बी वेरी एनलाइटनिंग. helping others. yes. So it's a wrap. Thank you so much, ma'am. It was very insightful and बहुत कुछ हमें ही सीखने मिला है आज इस एपिसोड पे आपसे. Thank you so much for Most welcome. coming. I'm so glad to be here. Thank you so much. Thank you.